Hello students, in my last lesson I explained you about relations, domain, codomain and range of a relation in detail. I tried to explain it to you with the help of few examples. I hope that now you know it very well, that what is the relation, what is its domain, range and codomain. So now let us start the sums of exercise 2.2 which are based on this concept only. So question number 1 is, in this question you have been given set A, and what are the elements of the set A? Natural numbers you can see from 1 to 14. 1 to 14, all these natural numbers have been given in are the elements of this set A. And you are asked to define a relation R from A to A. Means your domain and your range, both the elements, means pre-images and your images, both the elements should be from set A. ठीक है, ये प्री इमेज होती है, यहाँ से इमेज लेते हैं. By you have to define this relation in such a way that R is equal to, किस तरीके से डिफाइन करना होती है, that x y such that 3x minus y is equal to 0. This is the relation given to you. ये आपको relation given है और ये डिफाइन कर दिया इसने कि ये x and y both must be there from this set only. These elements x and y should not go beyond it. वो इससे बाहर नहीं जाने चाहिए, इसी सेट के अंदर के एलिमेंट्स होने चाहिए. राइट, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. तो भी डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसको किस फॉर्म में लिखिए, अपने रिलेशन को राइट इट इन द रोस्टर फॉर्म. तो चलिए हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं. तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यूज, बिकॉज x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो फर्स्ट आपका ये है इंडिपेंडेंट, यानी x की वैल्यूज यू कीप ऑन इनपुटिंग, जो इनपुट करते रहिए इस रिलेशन में एंड यू विल गेट आउटपुट, है ना. तो आप सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट कीजिए. तो ये आपके पास ये है 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 3x है. x की वैल्यू यहाँ पुट करते रहिए. व्हेन I will start, because it is given that x is belonging to A and A is starting from 1, so I am starting from 1. If you put x is equal to 1, then what is y? सोचिए, अगर आपने x को 1 रखा, because x is your first element, that is pre-image, so its image will be 3. Keep on putting. आप अपने यहाँ पर इस relation में put करते जाइए x की values and get the values of y. When x will be 2, y will be 6. When x will be 3, y will be 9. When x will be 4, 3 4s are 12. But let me tell you one very important point, that you should be very alert and careful that when you are calculating the values of the y, these must also lie in this set only, because y is also belonging to set A. It should not go beyond A. It should not be outside A. It should lie inside A only. When you will put x is equal to 5, then what is the value of y? When x is equal to 5, then y will be 15, and this 15 doesn't lie in this set A. It doesn't lie in this set A. Therefore, this ordered pair 5 and 15 will not be included in this relation, because it is already mentioned in this relation that x and y both must be in this set A. तो हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है, ये आप नहीं लिखेंगे. अब बात आ जाती है रिलेशन. when you have written in the roster form, then it is very easy to write what is the domain. Now what is the domain? Domain is the, बार बार इस चीज को अपने माइंड में रिकॉल करेंगे, आपको करने में भी आसान होगा. डोमेन इज द सेट. पहली बात तो डोमेन एक सेट है. सेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज होंगे इसके एलिमेंट्स. सेट ऑफ व्हाट? ऑल द प्री इमेजेस ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स. फर्स्ट एलिमेंट्स जितने फर्स्ट एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के वो सारे लिखिए. 1 2 3 4. ओके, दिस इज द डोमेन. नाउ व्हाट इज द रेंज? व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या है? सेकंड एलिमेंट्स का सेट. वो भी सेट है, ठीक है जी, वो भी सेट है. किस चीज का? सेकंड एलिमेंट. 3 6 9 12. 3 6 9 12.
And now at last, codomain. Codomain is that set to which this second element y belonging to. Y is belonging to set A. Y is belonging to set A. It means set A is your कोडोमेन. याद रखना हमेशा, बहुत ही आसान होता है कोडोमेन निकालना. तो ठीक है, आपका सेकेंड एलिमेंट किस सेट को बिलोंग कर रहा है, दैट इज योर कोडोमेन. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. नाउ यू विल डू द नेक्स्ट. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2. लेकिन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक एरर छोड़ दूंगी मैं. आपको उस एरर को आइडेंटिफाई करना है और उसको खुद ही करेक्ट करना है. अगर आप ऐसा कर पाए तो समझ लेना कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है. सो लेट अस सी आप उस एरर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी. यू ट्राई इट योरसेल्फ. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Set A is given 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 4 is not here. Yes, 4 is not here in this set. Now set B is 4, 6 and 9. And you have been asked to define a relation R by such that this x, y is the ordered pair such that the difference between x and y is odd. कैसा रिलेशन दिया है कि x और y यहाँ पर वो रखने हैं, यहाँ पर वो x और y रखना है कि x और y का डिफरेंस ऑड नंबर हो. लेकिन अब x कहाँ से लेना है और y कहाँ से लेना है, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड. दैट x शुड बी टेकन फ्रॉम सेट A. यानी कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट मस्ट बी टेकन फ्रॉम सेट A ओनली, और कहीं से नहीं लेना है. एंड y मीन्स द सेकेंड एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू दिस सेट B. वो इसमें से नहीं लेना, वो B सेट में से ही लेना है. Write R in the roster form, then write the domain, codomain and the range. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हर एलिमेंट लिखना है, यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखना है हमें. ओके, सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखना है. तो जब आपने सबसे पहले x1 लिया तो 1 का अब डिफरेंस 4 के साथ अगर लें तो क्या होता है, 1 minus 4, 4 minus 1, it doesn't matter. वो प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, आप उसको मत देखो. You don't look at the sign. You just check whether the number, whatever the value is coming, that is odd or even. ठीक है, तो 1 और 4 का डिफरेंस है 3. तो 3 is an odd number. तो हम 1 की सबसे पहले 1 और 4 का ऑर्डर पेयर लेंगे, 1, 4. अब मैं 1 का बाकियों के साथ भी चेक कर रही हूँ. 1 का जब 6 के साथ ऑर्डर पेयर लेते हो तो 1 और 6 का डिफरेंस कितना है, 5. दैट इज ऑल्सो ऑड, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो यही कह रहा है कि x और y का डिफरेंस ऑड होना चाहिए. तो हमने 1 का फिर ऑर्डर पेयर 6 के साथ भी लिया, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस भी 5 जो कि ऑड नंबर आ रहा है. अब अगला 1 और 9 का, 1 और 9 का डिफरेंस होता है 8. 8 इज नॉट एन ऑड नंबर, तो इस वजह से हम 1 का ऑर्डर पेयर 9 के साथ नहीं लेंगे. अब आ जाइए 2, 4 का डिफरेंस 2 होता है, क्योंकि ये इवन नंबर है. इवन नंबर का अब डिफरेंस जो है इवन नंबर के साथ इवन नंबर ही आएगा, तो ऑड नहीं आ रहा. 2 minus 6, 2 और 6 का डिफरेंस 4 आ रहा है, वो भी इवन नंबर नहीं है. लेकिन ये इवन ये ऑड, तो डिफरेंस ऑड आएगा. 2 और 9 का डिफरेंस 7 होता है, तो 2, 9. अच्छा, ये बात हमेशा ये भी ध्यान में रखना है कि मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज फ्रॉम सेट A ओनली. ये नहीं कि आप इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर. आपका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A में से एज पर दिस रिलेशन डिफाइंड. ओके, नेक्स्ट. आपने 2 के साथ भी सबका कर लिया, अब हो गया इसका 3 के साथ. 3, 4 डिफरेंस 1 है, ठीक है. 3, 6 डिफरेंस 3 है. 3, 9 डिफरेंस 6 इवन है. अब आ जाइए 5 पर. 5, 4 डिफरेंस ऑड है. 5, 6 डिफरेंस ऑड है, और 5 और 9 का डिफरेंस 4 होता है जो कि इवन है, वो हम नहीं लिखेंगे. तो वी हैव रिटन दिस रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म. नाउ कम टू डोमेन. अब इसका डोमेन क्या होता है जी? डोमेन इज द सेट. पहली बात तो वो सेट है.
अब सेट किस चीज का है? फर्स्ट एलिमेंट का। तो व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट? 1 is repeated, no element is repeated in the set, then 2, then 3, then 5. Okay, then range is the set of all the second elements, 4, 6, 9, 1, 4, 6, 9, 1, फिर दोबारा आ गया 6, 4, 6, तो 6 ऑलरेडी है, 4 भी ऑलरेडी है, तो नो नीड टू रिपीट द एलिमेंट्स। तो ये हो गया। अब है कोडोमेन। कोडोमेन मैंने क्या बोला था? द सेट फ्रॉम विच द सेकंड एलिमेंट वी आर टेकिंग सेकंड एलिमेंट मींस द y किस सेट को बिलोंग कर रहा है जी? y इज बिलोंगिंग टू सेट b। इसका मतलब जो सेट b है आपका, सेट b मींस 4, 6, 9, या फिर आप बोलिए सेट b, दिस इज योर कोडोमेन। अब मैं एक छोटा सा और नया कांसेप्ट इसमें बता रही हूँ आपको, इनवर्स ऑफ r। इनवर्स ऑफ r यानी इस रिलेशन का इनवर्स, वो क्या है? r इनवर्स से शो होगा और उसमें क्या है? रिवर्स हो जाता है। यानी इनवर्स मतलब कि जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाएगा और रेंज जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड बन जाएगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 4, 1, 6, 1, 9, 2, 1, 3, 6, 3, 4, 5, 6, 3। आपने देखा मैंने क्या किया है? 6, 5, सॉरी, व्हाट आई हैव डन, I have just reversed the position, interchange their position। तो ये inverse of R होता है। और अब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ R, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हो जाएगा, दैट इज 4, 6, 9, 1, और डोमेन रेंज जो है वो ये सेकेंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5। तो आपने देखा जो यहाँ डोमेन था वो रेंज बन गया और जो रेंज था वो इनवर्स में डोमेन बन गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव बीन गिवन दिस एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम दिया हुआ है आपको और आपसे बोला गया है कि यू आर टू राइट दिस रिलेशन। There is a relation in between this set and this Q set, P set and Q set, and you are to find out that relation and you are to write that relation in number 1 set builder form, then in roster form, and you are also asked to find out the domain and range of this relation। तो चलिए ये देखते हैं। आपका ये 5 है तो it is this is 3, 6 this is 4, this is 7, this is 5। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो क्या रिलेशन बन रहा है। आप ये देख रहे हो कि जब हम 5 पुट करते हैं तो आंसर 3 आ रहा है, जब हम 6 पुट कर रहे हैं, इनपुट 6 दे रहे हैं तो आंसर 4 है, जब 7 इनपुट कर रहे हैं तो आंसर 5 है। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ये वैल्यू उससे 2 कम आ रही है। तो y जो है, अगर मैं इसको x बोलूँ और इसको y बोलूँ तो y जो है इट इज ऑलवेज 2 लेसर देन दिस x। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? पहले सेट बिल्डर फॉर्म में बोला गया है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है इस रिलेशन का। आप देखिए जरा सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये है या पहले रोस्टर फॉर्म भी लिख लेते हैं फिर इसको डिफाइन करते हैं। रोस्टर फॉर्म में आप देखिए कि ये रिलेशन है, पहला पेयर 5 के साथ 3 का है। 5 you are inputting, you are getting 3, then 6 you are inputting, 4 you are getting, then 7 you are inputting, you are getting 5। These are 3, 5 to 3, 6 to 4 and 7 to 5। Okay, now if you are writing this in the set builder form, then you will write down x, y, arbitrary element you are supposed to write here, so this is the arbitrary ordered pair। तो आप इसमें क्या रिलेशन है वो आपको बताना। आप देख रहे हो ना, this is x, this is y, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो x है वो y plus 2 है, हमेशा x y plus 2 है, यानी 4 में प्लस 2 कर दो, इसमें 3 में प्लस 2 कर दो, 5 में प्लस 2 कर दो, तो x इज इक्वल टू y प्लस 2 कह सकते हैं हम इसको। x इज इक्वल टू y प्लस 2 है,
है ना. This 5 is 3 plus 2, 6 is 4 plus 2, 7 is 5 plus 2. ओके. लेकिन अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है. x is belonging to set P and y is belonging to set Q. आपको ये बताना पड़ता है कि आपका ये फर्स्ट एलिमेंट किस सेट को बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट किस सेट को बिलोंग करता है. अब आपसे बोला गया है कि आप डोमेन भी बताइए. तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट. क्या है? 5 6 7. This is 5 6 and 7. And what is the range? Range is the set of all the second elements. 3 4 5. This is 3 4. Done. Hi students. Now this is your question number 5. Yes, question number 5. Question 5 में you have been given this set A 1 2 3 4 and 6. 5 नहीं है बीच में, ध्यान से देखो. 1 2 3 4 6. Let R be the relation defined by R is equal to A B ordered pair such that A and B both are belonging to set A. यानी A और B दोनों इसी सेट में से आने चाहिए. And in such a way relation क्या है? B यानी second element. B means second element is exactly divisible by A first element से. यानी second element फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए. तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखो, डोमेन भी निकालो, रेंज भी निकालो. तो आप सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे. तो पहले 1 किस किस से डिविजिबल है? 1 इज डिविजिबल बाय 1. क्योंकि देखो अब ध्यान दो, अगर मैं इसको यहां पर लिखूं A 1 2 3 4 6, ठीक है, और A 1 2 3 4 6. ओके. तो अब मुझे A क्रॉस A में से सबसेट चाहिए ना. रिलेशन क्या होता है? A जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट है. तो अब इसके दोनों एलिमेंट A और B दोनों A को बिलोंग कर रहे हैं. इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो A क्रॉस A का सबसेट होगा, है ना. तो अब 1 की पेयरिंग 1 के साथ, ठीक है, 1 इज डिविजिबल बाय 1. आपको सेकेंड एलिमेंट डिविजिबल बाय फर्स्ट होना चाहिए. सेकेंड एलिमेंट डिविजिबल बाय 1. अब 1 2 भी ले सकते हैं. क्यों ले सकते हैं? 1 2 बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय 1. 1 3 1 4 1 6 सारे आ सकते हैं क्योंकि इस सब 1 से तो all the numbers are divisible. Therefore 1 3 1 4 1 6 सारे आ गए आपके. ठीक है, चलो जी. 1 के साथ तो हो गया आपका. अब 2 के साथ करो. 2 1. अगर आप 2 1 लिखते हैं, क्या 1 डिविजिबल बाय 2 है? नो. तो ये नहीं आएगा. 2 1 नहीं आ सकता. 2 2 यस, 2 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 2 आएगा. अब 2 3 नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. 2 4 आ सकता है बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाय 2. सो 2 4 आ गया आपका. फिर 2 6 भी आ जाएगा. यस, आ गया ये भी. अब उसके बाद 3 पर आ जाइए. इसका भी हो गया ना 2 का. 3 1 नहीं कर सकते बिकॉज 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 3 2 भी नहीं कर सकते बिकॉज 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. लेकिन 3 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए इसको लिख सकते हैं 3. 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बट 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 6 लिख सकते हैं. 3 6 बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाय 3. सेकेंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय दिस. अब 4 का देखिए. 4 का तो इसके साथ 4 1 नहीं बिकॉज 1, ये देखिए 4 1 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. 4 2, ये 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. ठीक है, 2 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4. इस तरीके से समझिए इसको. ओके, पूरा ढंग से. उसके बाद 4 3 भी नहीं आ सकता. 4 4 हो सकता है आपका. 4 4 4 6 भी नहीं हो सकता बिकॉज 6 इज नॉट डिविजिबल. अब उसके बाद आ जाइए 6 1 नो. 6 2, अगर आप ये देखो 6 2, देखो 2 6 2 आ जाएगा. 2 6 2 आ जाएगा क्योंकि दिस 6 इज डिविजिबल बाय 2. ये तो आ जाएगा, वो हमने लिख भी लिया है. बट 6 2 नहीं लिख सकते बिकॉज 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 6. आर यू गेटिंग मी? सो इट इज नॉट पॉसिबल. देन 6 3 भी नहीं आ सकता. 6 3 भी नहीं आ सकता बिकॉज 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 6. फिर 6 4 भी नहीं. 6 6 आ सकता है आपका. 6 6 ये आ सकता है. हो गए आपके सारे ये एलिमेंट्स. अब हमें ये रोस्टर फॉर्म लिख लिया आपने. अब इसके बाद आपने क्या लिखना है? डोमेन एंड रेंज. वो तो बहुत आसान होता है. एक बार आपने फंक्शन इफ यू हैव रिटन इन द रोस्टर फॉर्म देन नथिंग इज लेफ्ट.
To write down the domain and range, that is very easy in relations. You write down the set of all the first elements, that is your domain. 1 1, don't repeat, write it once, then 2, then 3, then 4 6, 2 3 4 6. Now range is the set of all the second elements. 1 2 3 4 6. फिर दोबारा वही आ रहे हैं, और वैसे भी इसका देखिए आपका जितने एलिमेंट थे वो सारे तो आगे में से बाहर किया जाएगा. दिस इज सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स. And the students, you have to do question number 6 yourself because that is very easy question. Now I have written question number 7. Write the relation this x. First element is x and second element is x cube. Whatever is the x here, you are to take the cube of that number as the second element. X is a prime number और x क्या होना चाहिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, that is a prime number less than 10. तो पहले तो आप ढूंढो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या है. तो आप पहले x पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x प्राइम नंबर. हाँ जी, पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, फर्स्ट प्राइम नंबर 2. 2 के बाद 3, लेकिन लेस देन 10 ही लेने हैं. 4 नो, दैट इज नॉट प्राइम नंबर. 5 yes, that is a prime number. 6 no, that is not a prime number. Then 7 8 no, 9 no, and 10 no. So these are 4 prime numbers which are less than 10. Now you are to make the ordered pair in such a way that the first element yani x should be these, and you are to take the cubes of these x as the second element. तो आपका relation जो बनेगा वो 2, 3, 5, and 7, second element आप ढूंढते cube. 2 का cube that is 8, 3 cube 27, 5 cube 125, and 7 cube 243. Now domain. Domain. What is the domain? Domain is the set of first element, that is 2, 3, 5, and 7. And what is the range? Set of second element 8, 27, 125, and 343. Okay, so this is also done. And students, this question number 8 is very important for not only 11th class, for 12th class also, because this question comes many times in many schools for 1 mark to find out the number of relations. इसमें set A is given, it has 3 elements, set B has 2 elements, and you are asked to find out the number of relations from A to B. डेफिनेशन क्या है रिलेशंस की, नंबर ऑफ सबसेट्स. तो अगर हमें ये पता चल जाए कि A क्रॉस B के यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ए दोबारा से समझिए, रिलेशन फ्रॉम A टू B इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B. तो अगर हमें A क्रॉस B के सबसेट पता चल जाए, ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स पता चल जाए, यानी कि हमें नंबर ऑफ रिलेशंस पता चल जाए. अब वैसे मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कराया हुआ है, हम उसी को यूज करेंगे. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम A to B is equal to 2 raised to power number of elements in A multiply number of elements in B. Okay, so this is 2 raised to power, this is 3 into 2, that is 2 raised to power 6, that is 64. Total number of relations from A to B will be 64. 64 relations बन सकते हैं A से B तक के लिए. ठीक है जी. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन है, इफ लेट R बी द रिलेशन ऑन Z. Z क्या होता है जी, इंटीजर्स. Z क्या है, इंटीजर्स. एंड दिस रिलेशन इज डिफाइंड बाय
A, B is an ordered pair such that A and B both are belonging to integers and A minus B is an integer. आपने वो दो इंटीजर्स लेने हैं, बस उनमें रिलेशन क्या है, ये है रिलेशन कि उनका डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए. और A और B कहाँ से लेने हैं, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड. A और B दोनों इंटीजर ही लेने हैं. एंड दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. मैं आपको बता दूं, have studied in your junior classes. क्या है आपकी ये प्रॉपर्टी कि कभी भी अगर आप दो इंटीजर्स लेते हैं, मैं आपको चलो पहले कुछ और समझाती हूँ, नेचुरल नंबर से समझाती हूँ. जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये दोनों नेचुरल नंबर है. अगर हम इनको ऐड करते हैं देन वी आर गेटिंग अ नेचुरल नंबर. 7 एक नेचुरल नंबर है, 9 एक नेचुरल नंबर है. यू आर एडिंग, यू आर गेटिंग अ नेचुरल नंबर. यानी आप जो आपके ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये इनपुट है, ठीक है, वो जिस सेट को बिलोंग करता है, आपका आउटपुट भी उसी सेट को बिलोंग कर रहा है. आप ये समझिए, इसको इस तरीके से लीजिए. इंग्रेडिएंट्स, इनपुट is belonging to whatever set, the answer means the output is also belonging to the same set. ये भी देखिए, ये आपका नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो हमने ये वाला एक रिलेशन लगाया है इन दोनों के अंदर, और जो आंसर आया that is also a natural number. तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जिस सेट के हमने इनपुट्स लिए, वो एक ऑपरेशन लगाया, जो भी रिलेशन लगाया हमने, हमारा आंसर भी उसी सेट में होता है. ठीक, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है. ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अब एडिशन के केस में तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है. लेकिन अगर आप यहां पर देखिए, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, बट इट डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर्स में ये जो ऑपरेशन लग रहा है, ये जो आपने रिलेशन लगाया, वहां पर तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, यहां तो नहीं कर रही है ना, तो इसमें फेल हो गई. लेकिन अब हम इस सेट को ही चेंज कर देते हैं. अगर ये इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर है, तो आंसर भी इंटीजर है. ठीक है, तो एक इंटीजर लिया, दूसरा इंटीजर लिया, उसका डिफरेंस हमेशा इंटीजर आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आप दो इंटीजर्स ले रहे हैं, तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा. यानी आप ए और बी कोई भी इंटीजर ले, क्योंकि ए और बी बोला इंटीजर ही लेना है, तो आप ए और बी कोई भी इंटीजर लोगे, उसका डिफरेंस तो इंटीजर ही आएगा. ये बात तो हो ही गई. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ए और बी सारे पुट कर सकते हैं, सारे इंटीजर्स पुट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस तो उनका इंटीजर ही आना है. तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में इनफाइनाइट सेट में जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं. तो डोमेन होता है आपका, डोमेन क्या है, वट एवर वैल्यूज वी कैन पुट. हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, ए को क्या पुट कर सकते हैं, ए क्या पुट कर सकते हैं, ऑल इंटीजर्स. अभी जैसा मैंने समझाया आपको, ऑल इंटीजर्स, या फिर लिख दीजिए z. रेंज क्या हो गया आपका, रेंज होता है सेकंड एलिमेंट. सेकंड एलिमेंट बी यानी सेकंड एलिमेंट क्या पुट कर सकते हैं, वो भी कोई भी इंटीजर पुट करो. और इंटीजर माइनस इंटीजर, क्योंकि इंटीजर ही आएगा, सभी इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो डोमेन भी आपका z हो गया और रेंज भी इसमें z हो गया, और आपको डोमेन एंड रेंज ही निकालना है. तो विद दिस क्वेश्चन your this exercise is over. In my next lesson I will start new topic that is very important. You can say the most important topic, that is your functions. Functions में start कराने वाली हूँ. Functions में भी as in this relations there are domains, range. In the same way there are also domain, range, codomain. बिल्कुल ऐसे in the very same manner. So, but how to find out? Because the functions are of different type. First of all, I will teach you what are functions, what are the different type of functions, and how we can find out domain and range for different type of functions. I will take it in my coming lectures. Thank you.